जोरहाट के ठाकुरबाड़ी में रविवार मध्यरात्रि को भयंकर अग्निकांड की घटना घटी है, जहां झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई है। इस अग्निकांड में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रात 11:30 बजे लगी आग में 75 वर्षीय सत्यनारायण अग्रवाल और 72 वर्षीय गोमती देवी की मौत हो गई है। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन की 13 गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत की। उल्लेखनीय है कि भयानक अग्निकांड को बुझाने के लिए ओएनजीसी, एनआरएल की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी प्रयोग की गई और इसमें ताज़ा अपडेट सामने आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक आग काफ़ी भयानक थी और काफ़ी दूर तक फैल चुकी थी, जिसे बुझाने में सुबह तक का वक्त लगा और जानकारी के मुताबिक अब भी आग बुझाने में कम से कम 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। तो इस तरह से आग से धुएं जो हैं अब भी निकल रहे हैं और इस अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई है। 75 वर्षीय सत्यनारायण अग्रवाल और 72 वर्षीय गोमती देवी की मौत हुई है। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन की 13 गाड़ियां और कुल मिलाकर 15 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भयानक अग्निकांड को बुझाने के लिए ओएनजीसी, एनआरएल की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई। এতিয়া বৰ্তমান জ্বলি থকা নাই, জুইটো কণ্ট্ৰলতে আছে। গতিকে 15খনমান ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছিলে আমাৰ ইয়াত। আমাৰ যোৰহাট ফায়াৰ ষ্টেচনত পৰাটো আহিছে আৰু যোৰহাট গোটেই জিলাখনত 5টা ষ্টেচনৰ পৰা আহিছে। আৰু ইফালে শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, আমাৰ যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট আৰু আমাৰ ONGC CISৰ পৰা আহিছে। জুইটো নুমালে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ জুই মানে ধোঁৱা আছে, স্মক আছে। এতিয়া আপোনাৰ নহয়, এইখন লুব্ৰিকেণ্টছৰ দোকান আছিলে, মটৰ পাৰ্টছৰ দোকান আছিলে, মবিল চবিল আছিলে। গতিকে এতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেথিং এপাৰেটাছ লৈ পেলাই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ সোমাইছে আৰু 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত আচলতে ধোঁৱাটো ওলাই যাব পৰা নাই। গতিকে লাহে লাহে খিৰিকি চিকিবিলাক দি ওলাই যাব। ব্ৰেথিং এপাৰেটাছ লৈ মানুহ সোমাইছে আৰু 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত ধোঁৱাবিলাকো নাইকিয়া হৈ যাব। এইটো সাংঘাতিক আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা বুলি ক'ম যোৰহাটৰ ইতিহাসত, এনেকুৱা জুই লগা এনেকুৱা ইতিহাসত। কাৰণ এনেকৈ নিজকে বচাবৰ কাৰণে জাপ দি পেলাই বয়সস্থ 2জন ব্যক্তি, মই আৰু ইজন থাৰ্ড ব্যক্তিজনো এতিয়া খুব চিৰিয়াছ। মই একচুৱেলি আই ৱাজ অন ৱে টু গুৱাহাটী। মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ সোনকালে। তো কালি কিন্তু মই ৰাতিপুৱা এখেতৰ এটা মিছ কল দেখি মই যোৱাৰ আগতে এটা ফোন মাৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ বৰপেটাত ইমান খবৰটো পটককৈ পোৱা নাযায়। মই অলপ দূৰ গ'লোগৈ, মই ডেৰগাঁও পাৰ হ'লোঁ। তাৰপিছত মই বোলো বেক কৰি দিয়া ভাল হ'ব, কাৰণ ইমান ট্ৰেজিক ঘটনা। মোক যেতিয়া খবৰটো পালোঁ, মই DCৰ লগতো অকণমান ADCৰ লগতো কথা পাতিলোঁ। মোৰ এটাই মানে ভাগ্য ভাল, মই এটা চেঞ্চত কৈছোঁ যে এই জুইটো ইচ্ছা কৰিলে ফাঁচিয়ালি যদি বস্তি অঞ্চললৈ গুচি গ'লহেঁতেন, বিস্তৰ মানে ক্ষতি হ'লহেঁতেন। এইটো ক্ষতি এইটোও যথেষ্ট ক্ষতি। মই গম পাইছোঁ, মোক কোৱা মতে এতিয়া আমাৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ যিজনে খুব ৰাজহুৱা কামত জড়িত থাকে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ইয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই মুহূৰ্তত যিসকল যি 2জন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। বাকীসকলৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। আজি ৰাতি 11:30 মই খবৰ পালোঁ যে এনেকুৱা জুই লাগিছে। তেতিয়া মই গম পালোঁ, মোৰ ৰিলেটিভে হয়। তেতিয়া মই লগে লগে স্কুটি লৈ ওলাই আহোঁ। আহি দেখোঁ 3খন গাড়ী জুই নুমুৱা গাড়ী লাগি আছিল, কিন্তু সেই 3খন গাড়ী 15 মিনিটত পানীটো শেষ হৈ যায়। তাৰপাছত তেওঁলোকে পানী আনিবলৈ গুচি যায়। তাৰ মাজত আধা ঘণ্টা কোনো গাড়ী নাই। আমি তেতিয়া DC, SP, কাছা, স্পীকাৰ ছাৰক চবক ফোন কৰোঁ। তেওঁলোকে খৰধৰকৈ বৰহুলা, আমাৰ এয়াৰফ'ৰ্চৰ গাড়ী, তাৰপাছত আমাৰ মৰিয়নি, তাৰপাছত তিয়ক, শিৱসাগৰৰ পৰা গাড়ী ব্যৱহাৰ এইটো আহি পৰা প্ৰায় 15-20খন গাড়ীমান আহি পাই যায়। লগত আছিলে স্কুটাৰ পাৰ্টছ আছিলে, তাৰ ভিতৰত টায়াৰো আছিলে স্কুটাৰৰ। আৰু ইফালে আমাৰ এইটো হিন্দুস্তান ইলেক্ট্ৰিকেল আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত টোটেল 5জন মানুহ আছিল। তেওঁলোকে তাতে থাকে, ঘৰ আৰু দোকান একেলগে আছিল। এটা ঘৰত 3জনকৈ মানুহ আছিল, তাৰে বুঢ়া বুঢ়ী 2জন। যেতিয়া জুইটো ঘেৰি ধৰে, তেওঁলোকে জুই লাগি ওপৰলৈ গৈ তেওঁলোকে তলত যেতিয়া ওলাবলৈ ৰাস্তা নাপায়, ওপৰৰ বেলেগ ঘৰৰ পৰা এই টুকুলাই লৈ জাপ মাৰি দিয়ে। তেতিয়া গোমতী দেৱী লগে লগে ঢুকাই থাকে আৰু সত্যনাৰায়ণজী প্ৰাণ বাচি আছিলে। তেওঁলোকক যেতিয়া আমি চিভিললৈ নিওঁ আৰু 3জন যিজন ইনজৰ হৈছে, এজন চিভিল হস্পিটেলত আছে, 2জনৰ সংকটজনক অৱস্থা আছে। তেওঁলোকক আমি ডিব্ৰুগড়লৈ পঠোৱা হ'ল। शुभम अग्रवाल हैं हमारे संवाददाता। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम उनसे चाहते हैं। शुभम, जितनी बड़ी क्षति हुई है इस अग्निकांड में, उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, और क्या आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका है? जी हाँ,
रविंदर जी, अभी तक आग पे पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जहां पे ये जो सिंगी स्कूटर नामक एक व्यावसायिक एक प्रतिष्ठान थी और वो पूरी तरह जल के राख हो चुकी है और उसी के ऊपर उनके निवास स्थान भी थे और जहां पे 2 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि रात्रि इस सिंगी स्कूटर के बिल्डिंग पर आग लगते ही सत्यनारायण एवं गोमती अग्रवाल ने आग से बचने के लिए बिल्डिंग के पीछे ही टोकलाई नदी में छलांग लगा दी थी और उसी समय दोनों को जोरहाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, पर अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। साथ ही उनको बचाने के लिए उनके बेटे महेंद्र ने भी टोकलाई नदी में छलांग लगाई और पूरी तरह घायल हो गए और फिलहाल महेंद्र के उच्च चिकित्सा के लिए उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया है। जी शुभम, लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि एक तरह से वहाँ व्यवस्थाएं की कमी थी और आग की जो भयावहता है वो भी महसूस की जा सकती है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि लोग प्रत्यक्षदर्शी जो हैं रात 11:30 बजे वहाँ पहुँचे और जिस तरह से 3 गाड़ी वहाँ लगी हुई थी अग्निशमन की और तीनों गाड़ियों की जो पानी खत्म हो जाती थी तो आधे घंटे समय लग जाते थे उन्हें लाने में। इस बीच में कोई व्यवस्था नहीं था, तो क्या कुछ व्यवस्था की जो कमी है वहाँ सामने आई है? और इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जो 3 लोग घायल हुए हैं उनकी ताज़ा हालत क्या है? जी हाँ रविंदर, रात्रि के समय बहुत ही व्यवस्था की कमी देखी गई थी और 11:30 बजे जब यह अग्निकांड हुई थी और उसी समय 3 दमकल आई थी, पर कुछ आधे से ज्यादा घंटे के लिए वहां पे कोई भी दमकल नहीं आया गया था जब पानी खत्म हो गया। लेकिन लगभग 12:30 बजे सुबह दमकल आई थी, पर अभी तक भी दमकल पूरी तरह आग बुझाने में काबू नहीं हो पाई है। अभी भी धुआं निकल रहा है और अभी भी बिल्डिंग के सामानों को बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही जो तीन व्यक्ति जो बुरी तरह घायल हुए हैं उसमें से एक महेंद्र अग्रवाल को गुवाहाटी भेजा गया और बाकी 2 जोरहाट सिविल अस्पताल में ही है। शुभम, अगर बात करें वहाँ की स्थानीय जो नेता हैं, क्या कोई बड़े नेता जो हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पहुँचे हैं? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई गया है? और जो पीड़ित परिवार हैं या पीड़ित जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनकी मदद के लिए क्या किसी ने कुछ कहा है? जी रविंद्र जी, रात्रि 11:30 बजे जब ये अग्निकांड हुई उसी समय जोरहाट के जिला उपायुक्त और एसपी महोदय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगभग सुबह 5 बजे तक वो इसी मौका वारदात पर मौजूद भी थे।